Uh, Very good morning to you all, my dear students, and good morning. And today we will discuss, we can say that we will continue our topic, metals and non-metals. Okay. Uh, Till now we have studied some physical properties of metals and non-metals, and in metals and non-metals physical properties we have discussed that about. Um, hmm, Good morning. Physical properties that metals exist in solid state, exception mercury, and non-metal exist in all the three states of matter. Okay. Then we discussed about the second property, that density. Okay. Metal having high density, non-metal having low density. And I have also said that by only this point, that metal having high density and non-metal having low density, we can create by logic uh, many other properties. That, for example, if metal having high density means what? Their molecules are tightly packed, and since their molecules are tightly packed, therefore, it is obvious that more heat will be needed to overcome from the attractive intermolecular force. Okay. Therefore, melting point of metal will be high, and for non-metal it will be low. And if any substances having melting point is high, then definite its boiling point will be high. है ना, ये मैंने बताया ना कि डेंसिटी वाले लॉजिक से मैं सारा बात कर सकता हूँ कि why metal having high melting point and high boiling point. Next, by this property, that density of the metal is high, we can also biologically can say that metal is hard. क्योंकि डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो नेचुरल है कि it will be hard. Okay. Then also, देन ऑल्सो क्या और कौन सा प्रॉपर्टी था मेरा? मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, यस, लस्ट्रस, ये मैंने पॉइंट डिस्कस किया आप लोगों से. Ductility, then we came to conductivity also, that metals are good conductor of electricity and non-metal are bad conductor of electricity. और साथ ही साथ ये भी ध्यान दिया हम लोगों ने. यस, मैं बताऊंगा टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी मैं लॉजिकली बताऊंगा कि कैसे वो डेंसिटी से ही वो पॉइंट को हम लोग कवर कर सकते हैं. मेलेबिलिटी, कंडक्टिविटी. अच्छा, एक्सेप्शन भी ध्यान रखना है कि मेटल्स कंडक्ट करता है, नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करता है, बट देयर इज एक्सेप्शन, ग्रेफाइट. और सबसे बड़ी बात कि एक ही कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉप है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरिंग, जिसमें डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये सब बातें ध्यान रखना है जहां जहां एक्सेप्शनल केसेस है. ओके बच्चा? ओके. Someone, yes, yes, yes. Thermal conductivity means by which the property by which heat can be conducted, and electrical conductivity means by which electricity can be conducted. For example, if we will take iron rod, and at one end, I am taking one iron rod, and at one end, I am hitting it, okay, with the help of candle. तो ये तो एक ऑब्जर्वेशन की बात है. आप भी जानते होंगे कि सेकंड एंड जो है वो क्या होगा, वो भी गर्म हो जाएगा, है ना. इट विल ऑल्सो बिकम हॉट. व्हाई इट इज? बिकॉज
हाँ, ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट, यानी molecules which are here will become hot and it will transfer its energy to its neighboring molecule. ओके, ये मॉलिक्यूल जो यहाँ है वो क्या करेगा, अपने बगल वाले को हीट कर देगा, बगल वाला उसके बगल वाले को हीट कर देगा। ठीक है, आप हायर क्लासेस में पढ़िएगा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हीट के ट्रांसफर होने का क्या क्या मोड है, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, शायद आप जानते भी होंगे, हो सकता है ना। एक मिनट, कोई बच्चा बोला कंडक्शन लिक्विड में होता है, मैं आपको एक एग्जाम, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जैसे मान लो 4 फ्रेंड आप लोग आपस में बैठे हुए हैं बेंच पे, ओके सुनिएगा अच्छा लगेगा। 4 फ्रेंड आपस में आप लोग बैठे हुए हैं, कोई भी हो, ए बी सी एंड डी, 4 फ्रेंड है, ओके 4 फ्रेंड है। ध्यान देना इस बात, सब बगल बगल बैठा हुआ है। ए के पास एक एप्पल है, ठीक, ए के पास एक एप्पल है, ओके, वो डी को एप्पल खिलाना चाहता है, ठीक ना। क्या क्या वे होगा खिलाने का, क्या क्या होगा वो एप्पल खिलाने का। एक होगा कि फेंक दे, एक होगा कि फेंक देगा कि लो डी कैच करो खाओ, ठीक, यानी बीच में कोई दोस्ती का साथ नहीं लिया। रेडिएशन यही होता है, नो नीड ऑफ एनी मीडियम, कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। सन के द्वारा लाइट आ रहा है, इट रिक्वायर्स नो मीडियम, डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है। अगर आप समझते हैं कि एटमॉस्फेयर है तो पूरा यूनिवर्स में एटमॉस्फेयर नहीं है ना। यानी इफ देयर इज नो इंटरवेनिंग मीडियम, if there is no requirement of any intervening medium, then that mode of transfer of heat is known as radiation. यानी ये सेव डायरेक्ट डी को कैच करने दे दिया, खाओ, ओके, दिस इज व्हाट, रेडिएशन। वेरी गुड। दूसरा खाने का तरीका हो सकता है कि भाई ए बी को दे दिया, बी सी को दे दिया, फिर बी सी को दे दिया, है ना, समझो, दिस इज कंडक्शन, दिस इज कंडक्शन। What I have said here, when we will heat this end, then this molecule will get energy, heat energy, and this molecule will transfer its energy to its neighboring molecule. फिर ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देगा। जैसे मैंने कहा, ये ए जो है अपना सेम बी को दे देगा, बी सी को दे देगा, सी डी को देगा। दिस इज कंडक्शन। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। मुझे लगता है कि आप भी भूलिएगा नहीं। तो दिस इज व्हाट, कंडक्शन। हाँ, नाउ एक और मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है, ए जाएगा खुद डी के पास कि खा लो भाई, यानी मॉलिक्यूल चला जाएगा, यानी मॉलिक्यूल यदि यहां से वहां चला गया तो दैट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कन्वेक्शन। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये जो मॉनसून वगैरह जो आता है, यानी सी ब्रीज, लैंड ब्रीज वगैरह जो आप पाते हैं, क्या होता है, वहां का मॉलिक्यूल जो है समुद्र से जो उठा वो लैंड पे आ गया, आप उसको सी ब्रीज कहते हैं। दैट इज व्हाट, कन्वेक्शन। यानी मॉलिक्यूल खुद आया, मॉलिक्यूल खुद आ जाए, दैट इज कन्वेक्शन। मॉलिक्यूल बगल वाले को हीट दे दे, दैट इज कंडक्शन, ओके। और रेडिएशन क्या, नो नीड,
कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट खाओ, डी को कैच करेगा, क्या है ना? आई बात समझ में? हाँ, तो दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी बच्चा। और सेम एज इलेक्ट्रिकल भी, ज्यादातर जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसमें होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी भी होता ही है। एक आध एक्सेप्शन है, जैसे मैं मेरे ध्यान में अभी आ रहा है माइका, माइका अबरक, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी। तो बस आप यही समझिए कि विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, we will say that electrical conductivity, और which conduct heat, thermal। तो दोनों करीब करीब दोनों होता है अगर, और वो मेटल बहुत अच्छा क्या है, कंडक्टर है, वेदर इट इज थर्मल और वेदर। थर्मल कंडक्टिविटी है ना, इसीलिए ना कुकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है मेटल, है ना, थर्मल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग के पर्पस। जो बच्चा पूछा था वो समझ गया मेरी बात? हेलो, इफ्साना इल्फ, आर यू इफ्साना इल्फ? गुड। आप पोएम जो भेजी हैं भाई, उसका वर्ड इतना हार्ड हार्ड है कि मुझे पहले समझना पड़ेगा, तब मैं बात करूंगा, ठीक है ना? यस, एंड आई रेड इट, but your word is very hard, therefore I have to check the help of dictionary, then I will say that how it is, okay? Okay, ठीक है, सब में कुछ कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए, और मुझे अच्छा लगता है बच्चा जब कुछ अच्छा, ज्यादा उसका सोच जो है बहुत बेहतर रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप बच्चे हैं, लेकिन उसी बच्चे में कोई कोई बच्चा होता है ना कि बहुत अच्छा अपना सोच बताता है, अपना लॉजिक देता है पढ़ाई में, तो पसंद पड़ता है भाई। तो मैं सबको कहूंगा कि आइए इस फोरम में, सब लोग इन्वॉल्व होइए, मैं वेलकम करूंगा। और मैं ये भी कहता हूं कि आपका कुछ अच्छा गुण होगा जो मुझे लगेगा मेरे में नहीं है, तो मैं उसे एडॉप्ट करूंगा। मैं हमेशा सीखना चाहता हूँ, ओके? अ मैन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न। आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है सीखने के लिए, ओके? इसलिए ये ध्यान रखिएगा। हम्म। मैं स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत स्टूडेंट को मैं देखता हूँ बड़ा चुपचाप वो पढ़ते रहता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाता है, तो मैं भी सोच मतलब करता हूँ कि नहीं, वो बच्चा इतना कंसंट्रेट किए हुए है, वाई आई एम नॉट? तो मैं करता हूँ, मैं बच्चे से सीखता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अब जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत लोगों को मैंने देखा है टेंसाइल स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट कुछ गड़बड़ है, वो सिर्फ हार्डनेस कह के काम चला देते हैं, ओके? जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो वर्ड है, ये मैं समझाना चाहूंगा क्या इसका मतलब होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ समझना अच्छी तरह। टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कि मॉलिक्यूल, वो बॉडी को रिगेन करने का प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है। रिगेन, जैसे मान लिया कि आप कोई आयरन रॉड को एक सर्टेन लिमिट तक मोड़ते हैं, थोड़ा ही मोड़ते हैं, तो देखते होंगे फिर वापस हो जाता है तुरंत, है ना? यानी आप रहेंगे वहां, आप जो ऐसे फोर्स लगाए, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्म मतलब मैं उसका स्टेप डिफॉर्म कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने वो फोर्स हटाया, जैसे समझो ये रॉड था, मैं उसको ऐसे करके कर रहा था तो ऐसे हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने ये फोर्स हटाया, ये वापस यहाँ हो गया। यानी ये एबिलिटी उसमें बहुत है कि वो तुरंत रिगेन कर ले रहा है अपना से। ठीक, क्यों रिगेन कर रहा है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स इतने करीब करीब हैं, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना हावी है कि अगर आप डिफॉर्म करना भी चाहते हैं और उसको हटाते हैं डिफॉर्म फोर्स को, तुरंत वापस होता है। दिस इज टेंसाइल। आई बात समझ में?
ये होता है टेंसाइल। और मेटल में ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। आपको लगेगा, आपसे कोई पूछेगा कि जल्दी कौन शेप अपना वापस ले लेगा, रबड़ कि लोहा, तो आपको थोड़ा बहुत दुविधा होगा, आप सोचिएगा कि रबड़, लेकिन नहीं, लोहा ज्यादा जल्दी रिगेन करता है। आप तो उसको पहले मोड़ ही नहीं पाते, ऐसे करते हैं, है कि नहीं, मुश्किल से मोड़ता है। तो जो कहता है कि जो रेजिस्ट करे, विरोध करे अपना स्टेप बदलने में, उसी के बारे में कहेंगे कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा है। अब हो ही नहीं तो वो अलग फंडा हो गया, लेकिन अगर होता है चेंज, उसमें है एबिलिटी चेंज होने का, लेकिन विरोध बहुत ज्यादा करता है, तो आप कहेंगे कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। ओके, जैसे अगर मैं पूछूंगा कि रस्सी में टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है कि लोहा में, आप क्या बोलिएगा? लोहा में। हाँ हाँ, क्योंकि रस्सी हो सकता है कि आप अगर उसमें बहुत भारी चीज लटकाए हैं तो हो सकता है वो खिंचा जाए, पतला हो जाए, लेकिन लोहा बहुत हद तक कोशिश करेगा, और उस रस्सी से फिर उस ऑब्जेक्ट को हटाइएगा तो हो सकता है वापस वो शेप में नहीं आए, वो खिंचाया तो खिंचाया रह गया। लेकिन लोहा एक सर्टेन लिमिट तक, उसको भी अगर हम खींच लीजिएगा तो वो भी नहीं वापस होगा, लेकिन एक खास लिमिट तक आप कोई वजन किया और थोड़ा सा ऐसे हो गया, खिंचा गया, और फिर अगर आप वजन को हटाते हैं तो वापस हो, जैसे स्प्रिंग। आप देखिए ना, ये तौलने वाला जो वेइंग होता है, क्या उसको कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस, कहाँ उसमें रबड़ लगा हुआ है, उसमें क्या लगा हुआ रहता है, लोहा लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि वो फिर ओरिजिनल शेप में तुरंत आ जाए, वही हुआ टेंसाइल। ओके बच्चा, गुड। देखो मैं एक एक पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये नहीं कि बुक का रीडिंग डाल दिया और उसको मीनिंग वो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, सोनोरिसिटी आप समझते होंगे। सोनोरिसिटी मीन्स क्या हुआ कि जैसे आप मान लिया मंदिर में ही कोई घंटी लगा हुआ है, एक आवाज आपको रिंगिंग साउंड आता है ना, बहुत देर तक, दैट इज सोनोरिसिटी, सोनोरस। तो मेटल हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिसिटी। ओके, चलिए, तो और कोई एनी डाउट, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट? नो। और मैं जिन बच्चों को हमेशा याद करता हूं, क्या वो लोग प्रेजेंट हैं? ओके, लेकिन बच्चा कम है बाबू, बच्चा कम है। अच्छा, आज आज मैं आप 8H के बच्चों से 12 बजे से फोन पे मुलाकात कर रहा हूं, वर्चुअल। ओके, हाँ, आज सारे बच्चों का हाल चाल लूंगा, उनके पेरेंट्स से मुखातिब होऊंगा। आज 12 बजे से मेरी ऑनलाइन सेवा आप लोगों के लिए पर्सनल चालू होगी, पर्सनली। इसे फोन को स्विच ऑफ नहीं कीजिएगा। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं बात कर रहा हूं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। किसका किसका, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का चेक करूंगा। तो इसके लिए आप एक एक्टिविटी करें कि एक मैग्नीशियम का रिबन ले लीजिए। ऐसे ये सब लैब में प्रोसेस है, लेकिन आप सुनिए अभी तक खाली। मैग्नीशियम का रिबन मैंने लिया, ओके, और
इसको मैंने बर्न किया। ओके, बर्न जब मैं किया तो मैं पाता हूं क्या हूं कि यहाँ पर एक डस्ट ऐसा गिर रहा है, जल रहा है। जैसे आप कोयला जलाते हैं तो ऐश गिरता है, उससे राख निकलता है, कुछ वैसा ही यहाँ भी हुआ। लेकिन यहाँ जो मुझे मिला डस्ट, दैट हैविंग कलर ऑफ व्हाइट, व्हाइट पाउडर मिला मुझे। ओके, व्हाइट पाउडर। आप जान लें कि व्हेन वी आर बर्निंग एनी सब्सटेंसेस, इट मीन्स इट इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन। मैं आपको पहले भी बता चुका था, ये तो रिवीजन है। कंबसन मीन्स ही हो गया ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इट मीन्स व्हाट, कि ये मैग्नीशियम को जब मैं बर्न कर रहा था तो इट मीन्स मैग्नीशियम कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं यहाँ अभी ज्यादा आपको ट्रबल नहीं दूंगा ये सब रिएक्शन के लिए, क्योंकि 9th में आपका वेलकम होगा इन सब चीजों के लिए, ठीक है। अभी आप सीधा जानिए, मैग्नीशियम मोनोएटॉमिक है, ऑक्सीजन इज डायटोमिक, इसीलिए 2 में लगा हुआ है। यानी वो जब भी एग्जिस्ट करता है एज ए मॉलिक्यूल, उसमें 2 एटम होते हैं। और ये क्रिस क्रॉस मेथड डिटेल्स में आप क्लास हायर क्लासेस में पढ़िएगा। ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी होता है, इसलिए यहाँ 2, और मैग्नीशियम का भी 2 होता है, और वो 2 कैंसिल हो गया। जहां तक बैलेंस करने की बात है तो यहाँ मैं 2 ऑक्सीजन देख रहा हूँ और यहाँ 1 ऑक्सीजन देख रहा हूँ, तो यहाँ मैं 2 लगा दिया, जिससे कि ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 ऑक्सीजन, लेकिन लगे हाथ मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इसलिए यहाँ भी 2। तो दिस इज बैलेंस। ये सब के लिए बेहतर होगा कि हायर क्लासेस में आपका वेलकम रहेगा। ओके, अब आगे क्या हुआ कि चेक किया गया कि भाई इसका नेचर क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है ना। तेजस ऐसा है कि आर्यन ऐसा है ना। मीन्स एसिडिक है कि बेसिक है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एसिड पता करने के लिए एक लिटमस पेपर लिया जाता है। ओके, लिटमस। और यदि उस लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड हो जाए, ब्लू से रेड हो जाए, मीन्स वो एसिड है। और यदि रेड से ब्लू हो जाता है तो इट मीन्स कि वो बेस है। मैं याद रखने का एक तरीका आपको बता देता हूं। फाइनल कलर आप याद रखिए रेड। रेड में डी है और एसिड में भी डी है, इसीलिए रेड जब हुआ तो एसिड हुआ, एक तरीका। और फाइनल कलर ब्लू, बी पहले लिखा हुआ है और बेस में भी बी पहले लिखा हुआ है, यानी ब्लू बेस। समझे क्या ट्रिक बताए? हाँ, तो अरे यार सुनते हो ना जी तुम लोग, कि खाली मोबाइल ऑन करके बैठ गया है? हाँ, हाँ ध्यान दीजिए। हाँ ध्यान देना, ये नहीं सोचना कि ऐसे टाइम पास वाली बात। बहुत मतलब अच्छा अच्छा आपको जानकारी मिलेगा, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ ना कि 8th क्लास का साइंस कॉम्बिनेशन ऑफ 9th एंड 10th, आप ये मान के चलिए। आप अगर अभी फाउंडेशन बेटर कर लेते हैं, 9th 10th स्मूथली निकल जाएगा, ये चीज है। नहीं तो 9th 10th में उसी में लगे रहिएगा, फाउंडेशन ही बनाते रहिए, है ना। अब जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मेरा बना, उसको मैं पानी में डाल दिया। पाउडर को क्या किया, पाउडर जो था ना, पाउडर उसको पानी में डाल दिया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया। पानी में जब डाला और तब एक लिटमस पेपर लाया, तो अगर ब्लू लाया था, जैसे यहाँ पर ध्यान देना होगा कि मेटल ऑक्साइड ना है, ये बेसिक इन नेचर होता है। तो बेसिक इन नेचर होता है मतलब फाइनली ब्लू, यानी रेड अगर मैं लाया, रेड कलर का लिटमस पेपर, रेड लिटमस लाया था अगर, तो मैं पाया कि वो ब्लू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था और उसको यदि मैंने पानी में डाला तो इट मीन्स कि वो बेस बन गया, यानी उसका बेसिक इन नेचर होगा। यानी रिएक्शन जो हुआ, केमिस्ट्री क्या है, जो हम लोग बात बोलते हैं उसको
इक्वेशन के रूप में एक्सप्लेन करना होता है। जैसे मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम जब आप पढ़ते हैं तो वो क्या होता है कि उस वर्ड प्रॉब्लम को आप इक्वेशन में बदलते हैं ना भाई। जैसे लिखा हुआ है कि सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 55 ईयर्स, तो आप क्या करते हैं, इस वर्ड को आप लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 55। यही ना कायदा तो पढ़ाई का, यही ना है भाई। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको मैंने पानी में डाला, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में डाला मतलब H2O, है ना। तो आखिर क्या बना होगा जो वो बेस हो गया। तो एक्चुअल में ये भी आप आगे के क्लास में पढ़िएगा कि बेस वो सब्सटेंस होता है जिसमें OH रहे, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। तो मेन इसी का खेला है, ये बना था, इसीलिए ये लिटमस रेड से क्या हो गया, ब्लू हो गया। ओके बच्चा, एनी डाउट? ओके, सब बच्चा वेरी गुड, सब बच्चा बहुत तेज है। या हो सकता है कि अभी आधा नींद में होगा, इसलिए यस सर बोल के काम चला रहा है ना। ओके वेरी गुड। अभी तो देखो ज्यादातर बच्चे का उठने का टाइम अब बदल गया है, 9 बजे उठने लगा है ना। और मैं 10th वाले बच्चे को बोलता भी हूँ या आप लोगों को भी पढ़ाया हूँ सनराइज वाला, कि सनराइज अर्लियर होता है 2 मिनट पहले, बताया हूँ ना, रेड कलर होता है। तो मैं बच्चा से पूछता हूँ कि सनराइज देखे हो कि सनसेट ही देखे हो खाली। ऐसे ऐसे भगवान भी सोच के बनाए, सनराइज और सनसेट दोनों टाइम कलर सेम कर दिए ताकि काम चल जाए, है ना। चलिए आगे बढ़े। ऐसा करना चाहिए था कि सनराइज के टाइम में सन को ब्लू रखना चाहिए था, तब पूछते तो चेक हो जाता। हाँ, रिएक्शन विथ वाटर, एक मिनट, नॉन मेटल का तो चर्चा ही नहीं मैंने किया। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन अगर मैं बात करूं नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल में आप कार्बन लीजिए, कार्बन, तो उसके लिए भी एक एक्टिविटी बड़ा अच्छा बताया है। देखो एक्टिविटी तो इतना सुंदर है आपके बुक में, मुझे ये बुक भा गया है ना। हमेशा तुम देखते होगे कि मैं इस बुक का बहुत बड़ाई करता हूँ। देखो क्या करना है कि कोयला का कुछ पाउडर ले लीजिए आप, ठीक है, और उसको क्या कीजिए, जलता हुआ जो कोयला है टुकड़ा कुछ किसी चीज के मदद से, स्पून वगैरह की मदद से एक बीकर में आप डाल दीजिए, ठीक। कोयला है और उसको आपने कोई चीज के मदद से क्या किया, कोयला, बर्निंग कोल, ठीक है ना, कोल, बर्निंग कोल, और आप इसको क्या किया, बंद कर दिए। ओके, बंद कर दिए, ठीक। ठीक है, कोयला जलते जलते बुझ जाएगा, ये आप जानते ही हैं कि जो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो ऑक्सीजन से ये कोयला जो है कंबाइन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो जलना भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज कंबशन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब तक ऑक्सीजन है तभी तक जलना होगा। ओके, तो ये आप जान रहे हैं। तो यहाँ अब सिर्फ और सिर्फ क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपने कार्बन लिया था और वो जल रहा था। देखो भाषा, लैंग्वेज, चीज जो बोल रहे हैं उसी को सिंबॉलिक लिख रहे हैं। कार्बन बर्न मीन्स कार्बन इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, एंड इफ कार्बन कंबाइन विथ ऑक्सीजन व्हाट विल फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इस बीकर में सिर्फ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। हेलो, अब क्या किया, मैं इस बीकर में पानी डाल दिया, ठीक, पानी डाल दिया, पानी। अच्छा डायग्राम बनता है, हाँ हाँ, सब कभी कभी कुछ अप्रिशिएट किया करो, बहुत सुंदर डायग्राम बनाते हैं। हाँ, भले खराब भी बने लेकिन बड़ाई कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या किया, पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, उसके बाद मैं क्या किया, पानी डाल दिया, गौर करो, पानी डाला,
पानी डाला मीन्स CO2 plus H2O.